Students, welcome to our channel Zine Rocks. Today we are going to start the third chapter of Mathematics 1, that is arithmetic progression. Arithmetic progression, when the difference between any two consecutive terms is constant. When the difference between any two consecutive terms is constant, then it is an AP, that is arithmetic progression. For example, 2, 4, 6, 8. In this sequence, the difference between two numbers, it means 2 and 4. In these two numbers, the difference is 2. 4 and 6, the difference is 2. 6 and 8, the difference is 2. So, when the difference between any two consecutive means the number next to another number. When the difference between any two consecutive numbers is constant means same. In whole sequence, there is a difference of 2 is constant. Therefore, this sequence can be known as AP. ये जो सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, हर एक में डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है, तो ये सीक्वेंस हम कह सकते हैं AP. In your problem set 4.1, question 1 and first sum. This is the first sum only, 2, 4, 6, 8. So, if I want to solve this question, I have to write such statement like first I have to write T1. T1, it means first term. T1, it means first term. So, in this sequence, first term is 2. T2, that is second term, is 4. T3, that is third term, 6. And T4, that is fourth term, 8. First, I wrote all the terms T1, T2, T3 and T4. Now, I have to find difference, that is D. Difference equals to, we will write T2 minus T1. This is the formula of difference. T2 second term minus first term. Remember this. The formula of difference is T2 minus T1. It means 4 minus 2. Second term is 4 minus first term is 2. 4 minus 2, answer is 2. Next difference. Now I will write the formula as T3 minus T2. Now third term minus second term. It means 6 minus 4, answer 2. Next difference. Now I will write T4 minus T3. T4 minus T3, that is 8 minus 6 equal to 2. जितने भी नंबर्स वहां पे दिए हैं वो लास्ट नंबर तक आपको डिफरेंस फाइंड आउट करते जाना है. तो यहाँ पे देखो अभी डिफरेंस 2, 2, 2, सब में कांस्टेंट है, सब में डिफरेंस सेम है. सो नाउ आई हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. द डिफरेंस बिटवीन एनी two consecutive terms is constant, therefore it is an AP. In each and every sum you have to write this statement. The difference between any two consecutive terms is constant, or we can write any two consecutive numbers is constant, then it is an AP. Therefore, it is an AP. In your exercise, second sum, 2, 5 upon 2, 3 and 7 upon 2. In this sequence, first term is 2, second term is 5 upon 2, third term is 3 and
fourth term is 7 upon 2. Now first I have to find out difference. The basic formula is T2 minus T1. T2, that is 5 upon 2 minus T1, it means 2. Now 5 upon 2 is a fraction. So in this calculation I have to do cross multiplication. Cross multiplication, it means 2 2s are 4. So 5 minus 2 2s are cross multiplication, 2 2s are 4, and now this denominator will be the common for both the numbers, that is 2. 5 माइनस 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये जो डिनोमिनेटर था 2 वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा. सो आंसर 5 माइनस 4 1 अपॉन 2. Next difference. Now I have to write T3 minus T2. Third term minus second term. 3 minus 5 upon 2. Again cross multiplication. 3 2s are 6 minus minus 5 5, और ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के लिए अभी कॉमन. आंसर इज 1 upon 2. Last difference. Now I have to write T4 minus T3. T4 minus T3. 7 upon 2 minus 3. 2 3s are 6. 7 minus 6 upon 2. Answer is 1 upon 2. So here the difference, first difference 1 upon 2, second, third, all are same. So again I have to write the difference between any two consecutive numbers or terms is constant, therefore it is an AP. Third sum, minus 10, minus 6, minus 2 and 2. Now in this question, first term minus 10, second term minus 6, third term minus 2, and fourth term is 2. Now difference, D equals to T2 minus T1. Basic formula is T2 minus T1. T2 minus 6, then this minus, ये जो माइनस है वो मैं लिख रहा हूँ माइनस, और T1 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में -10 लिखना पड़ेगा. दोनों साइन हम साथ में लिख नहीं सकते, इसलिए मैं -10 मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. Now -6 minus minus plus 10, answer is 4. Next difference. Now formula will be T3 minus T2. T3 minus 2, ये जो माइनस है वो माइनस, T2 का वैल्यू is -6. Again I have to write in this bracket. -2 minus minus plus 6. 6 minus 2, 4. Last difference, T4 minus T3, 2, ये वाला माइनस, और T3 का वैल्यू -2. 2 minus minus plus 2, that is 4. Again the difference is same, the difference is constant, so you have to write the difference between any two consecutive numbers is constant, therefore it is an AP. Okay, स्टेटमेंट तुम लोग खुद से लिख लो. नेक्स्ट सम, फोर्थ, 0.3 0.33 0.333 dash dash dash. Okay, so now first term 0.3, second term 0.33, and third term 0.333. so here first difference, T2 minus T1, that is 0.33 minus 0.3. अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो देखो. 0.33 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट. ओके, पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है 0, और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 3. ये देखो 0.33 माइनस 0.3. सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आने दो. लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 3.
ये 3 कैरी हो जाएगा, 3 माइनस 3 0.0, आंसर इज 0.03। नेक्स्ट डिफरेंस T3 माइनस T2, 0.333 माइनस 0.33। अभी इसका सब्ट्रैक्शन 0.333 माइनस 0.33, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये 3 कैरी होगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, आंसर इज 0.003। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये 0.03 और ये डिफरेंस है 0.003। In this subtraction, after the decimal point there are 3 numbers and here after the decimal point there are 2 numbers. तो ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive numbers is not constant, therefore it is not an AP. Okay, sum number 7, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Okay, now first T1 3, T2 3 plus root 2, T3 equals to 3 plus 2 root 2 and T4 equals to 3 plus 3 root 2. First difference T2 minus T1, T2 second term is 3 plus root 2 minus first term is 3, plus 3 minus 3 cancel, answer is root 2. Second difference T3 minus T2, T3 minus T2। यहां पे देखो अभी T3 दैट इज थर्ड टर्म, 3 plus 2 root 2, ये माइनस का माइनस और माइनस के बाद दो नंबर है 3 and root 2, इसलिए मुझे वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सेकेंड टर्म T2 का जो वैल्यू है 3 plus root 2 वो मुझे ब्रैकेट में लिखना है। नाउ 3 plus 2 root 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 का माइनस 3 प्लस रूट 2 का माइनस रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1, तो 2 minus 1 1, दैट इज आंसर रूट 2। 2 root 2 माइनस रूट 2, आंसर आएगा रूट 2। वैसे ही थर्ड डिफरेंस T4 minus T3, T4 दैट इज 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2। थर्ड टर्म जो है वो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बाहर माइनस है इसलिए। नाउ इफ वी विल open this bracket then we have to change the signs। 3 plus 3 root 2 plus 3 का minus 3 plus 2 root 2 का minus 2 root 2, plus 3 minus 3 cancel, 3 root 2 minus 2 root 2, 1 root 2, that is root 2. Again the difference is constant, you can see here root 2 root 2 root 2, so you have to write the difference between any two consecutive numbers is constant, therefore it is an AP. Question 2, write an AP whose first term is A and common difference are given। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें AP को क्रिएट करना है, AP हमें बनाना है यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन 1 में हमें ऑलरेडी AP दिया था, सॉरी सीक्वेंस दिया था, और उसको हमें फाइंड आउट करना था AP है या नहीं है, और साथ में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। बट हियर इन दिस क्वेश्चन A that is first term, remember this, we can write the first term as T1 और A। जो फर्स्ट टर्म रहेगा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म या AP का फर्स्ट टर्म, उसको हम लिख सकते हैं T1 और वी कैन राइट A का मतलब भी फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दिया है -3 एंड डिफरेंस इज
0. So first I have to write T1 equal to A, that is -3. A जो फर्स्ट टर्म है, T1 वो भी फर्स्ट टर्म है, तो A का जो वैल्यू है -3 वही हो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट T2, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा देखो. T2 अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज T1, उसमें मैं डिफरेंस को ऐड कर दूंगा. इट मींस -3 + 0 = -3. अभी मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर का जो प्रीवियस टर्म है T2, वो प्रीवियस टर्म में मैं डिफरेंस को ऐड कर दूंगा. इट मींस T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 + D. -3 + 0 = -3. नेक्स्ट T4 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका प्रीवियस टर्म मींस T3, उसमें डिफरेंस ऐड कर दूंगा. T3 का वैल्यू -3 + 0, आंसर इज -3. तो यहाँ पे डिफरेंस दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था, उनके दोनों के बेसिस पे हमने ये पूरा AP फाइंड आउट किया. Therefore AP is -3, -3, -3, और लास्ट में डॉट डॉट डॉट. तो ये हो गया हमारा AP. सेम इन थर्ड सम, फर्स्ट टर्म दैट इज A, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया -7. सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका प्रीवियस टर्म इट मींस T1, उसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे. दैट इज -7 + 1/2. -7 प्लस डिफरेंस क्या है 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 2s -14 + 1/2, आंसर विल बी -13/2. इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, 2 6s 0.5, आंसर विल बी -6.5. नेक्स्ट T3, तो मुझे लिखना पड़ेगा T2 + D. T3 का प्रीवियस टर्म T2 प्लस डिफरेंस T2 का आंसर क्या है -6.5, या फिर ये जो -6.5 है वहां पे मैं -13/12 भी लिख सकता हूं. दोनों एक ही है ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में और ये डेसिमल के फॉर्म में. मैंने ये क्यों फ्रैक्शन लिखा, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो भी फ्रैक्शन में है, तो यहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. -13 + 1 -12/2. डिनोमिनेटर कॉमन है 2 तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं. -13 + 1 -12/2, आंसर विल बी -6. नेक्स्ट T4, T3 + D. T3 यहां पे भी ये जो T3 है वो T3 के लिए मैं -6 लिख सकता हूं, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकता हूं. मैं यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म लिख रहा हूं, -12/2 प्लस डिफरेंस है हमारा 1/2. तो -12 + 1 आंसर हो जाएगा -11/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो -5.5. Therefore AP is, फर्स्ट टर्म हमारा है -7, सेकेंड टर्म है -6.5, थर्ड टर्म है -6, एंड फोर्थ टर्म है -5.5 ... और ये कहां तक फाइंड आउट करना है, सिर्फ T4, 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं AP के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP. अभी अगेन सेम, ये जो क्वेश्चन 3 है वो क्वेश्चन 1 के जैसा ही है. क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 के जैसा ही सेम है. यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो AP दिया है, ये AP में हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म तो सिंपल है 0.6, ये वाले क्वेश्चन में 1/4 फर्स्ट टर्म हो गया. एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 के जैसा ही है. सेकेंड सम एंड फोर्थ सम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. बाकी ये प्रॉब्लम सेट के जितने भी सम्स मैंने स्किप किए, क्वेश्चन 2 में मैंने सिर्फ 2 सम सॉल्व किए,
एंड आई थिंक देयर आर 6 और 7 सम्स। तो जितने भी मैंने स्किप किए हैं वो सब सम्स तुम लोगों को खुद करना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड एंड फोर्थ कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी सॉल्व बाय यू ऑल। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज T1 वो मैं लिख रहा हूँ 0.6, ये हो गया फर्स्ट टर्म। डायरेक्टली मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन में T1, T2, T3, T4 वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला T2 माइनस T1, 0.9 माइनस 0.6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 6 0.3, सेकेंड डिफरेंस T3 माइनस T2, थर्ड टर्म 1.2 माइनस 0.9, अगेन यहाँ पे देखो 1.2 माइनस 0.9, 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 12, 3 यहाँ पे 0, आंसर इज 0.3। डेसिमल फॉर्म में कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हो अभी आना चाहिए। D इक्वल टू T4 माइनस T3, 1.5 minus 1.2, answer is 0.3. Therefore, first term that is A, या फिर हम T1 भी लिख सकते हैं 0.6 and common difference that is D equal to 0.3। बस हो गया सम। फर्स्ट टर्म हमें लिखना है और डिफरेंस कैलकुलेट दिखाना है और लास्ट में फाइनल आंसर। इन दिस क्वेश्चन first term that is T1 1/4, difference equal to T2 minus T1 3/4 minus 1/4, second term minus first term, डिनोमिनेटर कॉमन है 4 तो ये हो जाएगा 3 minus 1 2/4, that is 1/2, 2 1s are 2 2s are। नेक्स्ट डिफरेंस T3 minus T2, T3 minus T2, that is 5/4 minus 3/4, third term and second term। 5 minus 3 2/4, again 2 1s are 2 2s are। वैसे ही लास्ट डिफरेंस जो कैलकुलेट करोगे T4 minus T3 वो भी सेम आने वाला है, 7 minus 5 2/4 and 2/4 that is 1/2। तो लास्ट में लिखना है A इक्वल टू 1/4 एंड डिफरेंस इक्वल टू 7/4। जितने भी बाकी सम्स बचे हैं जो मैंने स्किप किए हैं वो तुम लोग खुद से सॉल्व करो।